everyone, it's me, Sarish Zafar, your host, who is with you every Saturday at 8:30 p.m. and then Monday 6:30 p.m. How are you doing today? Send your dedications, shout-outs, birthday or anniversary wishes, or any sort of messages. Simply say hello to your loved ones on sarish@sunrisetv.tv and I'll definitely read them out for you. Today, I'm talking about haute couture or haute couture, the French for high sewing, however you pronounce it. It is a common term for high fashion as produced in Paris and imitated in other fashion capitals such as New York, London and Milan. Sometimes it is used only to refer to French fashion. At other times it refers to any unique stylish design made to order for wealthy and high status clients. The term haute couture can refer to the fashion houses or fashion designers that curate exclusive and often trend-setting fashions. Today, I have a fashion designer whose origin belongs to Pakistan, Lahore, the city of life and delicious food, and of course good fashion. He just doesn't design for desi girls only, but he caters for all women out there. I've got a hold of him and I will be doing a chit chat and he will definitely give you good tips on which type of fabrics, style, embroidery and colors to go for, no matter if you're choosing to get basic clothes or western clothes. He is none other than my favorite couture designer, Umar Mansoor. We will be with you shortly, but before that, enjoy this video and stay tuned. Umar Mansoor is a business graduate, pursued a life in fashion since he was a teenager. After studying at London College of Fashion, Umar made his collection inspired by his Asian heritage entitled Culture to Couture. Now, more than just one to watch, Umar has shown that his work is timeless, rich in talent, and has managed to establish a name for himself in the competitive industry of fashion. His daring cuts and his enigmatic mix of East and West brew a delightful mix of fantasy and reality. When asked who his target audience were, he replied by saying, "My clothes are for individuals who are strong, confident, and open to new ideas. Someone who feels they need to be challenged." So here we have Umar Mansoor with us. Welcome to Music Junction, Umar. It's really nice to have you here. Thank you very much for inviting me on your show. You're most welcome. First of all, tell me, do you actually, क्या आप हमेशा थीम बेस्ड कपड़े बनाते हैं या फिर कहीं से भी आपके दिमाग में आइडिया आपने बस उठाए कपड़े बनाए या किसी के कपड़े देखे उसका डिज़ाइन चुराया, जो देसी कॉपी कैट्स कभी हो जाते हैं, कभी कभार होते हैं कह लें, और बाजार में टांग दिया? क्या आप क्या करते हैं? कोई थीम बेस्ड होते हैं, क्या होता है? जी, मैं प्रॉपर कलेक्शन पे काम करता हूँ, जो कि एक थीम और एक उसके ऊपर मुझे पहले से काम करना होता है, एक म्यूज़ डिसाइड करके कि ये कलर्स होंगे, ये एम्बेलिशमेंट्स होंगे. और जैसे मेरी पहली कलेक्शन थी वो कल्चर टू कचोर थी, जिसके अंदर मुझे एशियन कल्चर और वेस्ट का इन्फ्लुएंस और मिक्स दिखाना था एक फ्यूजन वे में. और जो मेरी दूसरी कलेक्शन जो लंदन फैशन वीक में इस साल लॉन्च हुई थी वो है जॉर्ज सुरात से इंस्पायर्ड अनटोल्ड इम्प्रेशंस के नाम से. फ्रेंच इम्प्रेशनिस्ट जॉर्ज सुरात के से इंस्पायर करके, और जो मैंने कलर्स यूज़ किए थे वो जो उसकी पेंटिंग्स में यूज़ हुए थे और उसी तरीके से एम्बेलिशमेंट आपके ड्रेस पे लगे हुए हैं. पॉइंटलिज्म उसकी टेक्निक थी जिसके में वो पिगमेंट्स को ब्रश से लगाता था, डॉट्स की स्ट्रोक्स की. तो इसी तरह आपके ड्रेस वगैरह आप देखें जो सीक्वेंस हैं वो उसी तरह से अप्लाई हुए हैं. वाह, वेरी नाइस. तो ये जो इतने डिजाइन्स होते हैं सब कपड़ों के ऊपर ही बनाए जाते हैं, तो मैं सोच रही थी एज पेपर वर्क, द पेपर कल्चर इज अ ब्यूटीफुल फ्यूजन of fashion and art, using a mixture of papers, patterns and typography. These dresses are any paper's dream, designer's dream. They're simply stunning. The craftsmanship is over the top. So have you ever thought of making a paper dress, cutting with papers and using different patterns and stuff? Yeah, actually when we were in the college, we have to do different workshops, etc. There I have done a outfit which was not a proper paper couture but which includes different elements, and also paper was one of the elements. So yeah, I have done something with the couture finish of course. Nice, so, very nice. So I have got a lot more questions, but before that I would like to go to a video. Guys, stay tuned, we will just be right back. Welcome back, guys. We are with
Umar Mansoor, a fashion designer. So I would like to ask you now is कि क्या आप सिर्फ देसी कुड़ियों के लिए कपड़े बनाते हैं या फिर हर किसी की नीड्स को आप कैटर करते हैं? मेरी मेन स्ट्रीम मार्केट है और बीइंग एन एशियन मुझे मेरा एशियन क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि आपको अपनी एथनिसिटी से सपोर्ट मिलती है, लेकिन बीच में बहुत सारे जो है नॉन एशियंस हैं और कुछ अरब्स हैं, कुछ इंग्लिश हैं और कुछ अफ्रीकन, हर तरह के कस्टमर्स हैं मेरे कस्टमर। अच्छा, तो आपके पास जब हर तरह के कस्टमर्स हैं तो आप मुझे ये भी बताएं कि मैगजीन से मैंने अक्सर देखा है, मुझे थोड़ी सी कपड़े की पहचान है बिकॉज आई एम अ लाहौरी टू एज यू आर कि कुछ भी वो ना अच्छी मॉडल्स पर बुरे कपड़े टांग कर कहते हैं इट्स अ कुचोर डिज़ाइन। सो क्या आप लोगों को बताएंगे कुचोर का मतलब क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 15 पाउंड के कपड़े कुचोर तो नहीं होते ना। ये यकीनन आपने एशियन मैगजीन्स में देखा, एशियन मैगजीन्स में देखा है, इट्स नॉट वेरी नाइस। मेन स्ट्रीम मैगजीन्स में ऐसा 15 पाउंड का कुचोर कुछ नहीं आता। हाँ, तो उनको बताएं कुचोर का मतलब क्या है। कुचोर इज अ पीस ऑफ आर्ट, इट्स वन ऑफ पीस, इट टेक टाइम टू मेक इट, और इसकी जो डेलिकेसीज होती हैं, इसकी एम्बेलिशमेंट्स होती हैं, वो काफ़ी दफासत के साथ लगाई जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू एनी रेडी टू वेयर आउटफिट जिसे प्रेट कहा जाता है। हाँ। इस तरह नहीं है कचोर के साथ जो यहाँ पे आप यूजुअली देखते हैं मार्केट के अंदर लटका होता है और उसको सिर्फ कचोर लेके उसको शूट अच्छा करवा लिया, अच्छे फोटोग्राफर से फोटोशॉप कर दिया और जो वो सिंथेटिक जॉर्जेट पे रफ एम्बेलिशमेंट्स हैं, सिर्फ उसके नीचे गोल्डन लाइनिंग लगी हुई है, मॉडल बहुत अच्छी है और फोटोशॉप करके उसको तो दैट्स इट, मॉडल अच्छी लग रही है तो ठीक है, कपड़े भी अच्छे लगेंगे। अब हम रियल लाइफ में तो हम फोटोशॉप करके नहीं घूमते ना, हल्का फुल्का मेकअप पहन के इंसान निकलता है, तो कपड़े अच्छे होने चाहिए, दैट्स द मेन पार्ट, यू नो, it makes a difference when you wear nice clothes with nice fabric and material. खैर, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लंदन में तो अभी आपने जैसे कहा कि आपके क्लाइंट्स हैं, तो लंदन के बाहर कौन से क्लाइंट्स हैं आपके? मिडिल ईस्ट से काफ़ी क्लाइंटल है और वेल यूजुअली समझा जाता है कि अरब क्लाइंट इतना वेल अवेयर्ड नहीं है, दे जस्ट लव टू स्पेंड मनी, इट्स नॉट लाइक दैट, इफ दे हैव मनी दे डू हैव टेस्ट आल्सो। और उस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा टेस्ट पाया जाता है एज कम्पेयर टू हेयर। यहाँ पे लोग ओवर कॉन्फिडेंस जरूर है अपने टेस्ट के मुतालिक, जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता। I know. लेकिन ये कि अरब्स न्यू व्हाट प्योर फैब्रिक इज, व्हाट प्योर सिल्क मींस, और यहाँ की तरह नहीं कि वो सिंथेटिक 100% फैब्रिक को कुचोर समझ के 15 पाउंड में लेके पहन लेंगे, इस तरह का सीन नहीं है। अच्छा। और उनको एम्बेलिशमेंट्स की भी पहचान है, दे वांट प्रॉपर क्रिस्टलाइज्ड एलिमेंट्स फ्रॉम स्वारोस्कीज, और एक्चुअली वहाँ पे अभी कुंदन और रफ तरह से बना हुआ काम इस तरह का लगा के नहीं बेच सकते, जो कि यहाँ पे एशियन मार्केट में ज्यादा है। अच्छा। मेन स्ट्रीम में यहाँ भी लोगों को फेदर्स की और स्वारोस्कीज की प्रॉपर्ली पहचान है। मैं ये नहीं कहूँगा एशियंस को पहचान नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ये कि यूजुअली वो इतना इस पर बॉदर नहीं करते। अच्छा, दैट्स नाइस। तो अब आप मुझे ये बताएं कि where do you get your design and style inspirations from? I have always taken amused which I have to work on it, और इस तरह नहीं है कि थ्रू आउट द ईयर मैं बनाई जा रहा हूँ कपड़े और हैंग करी जा रहा हूँ। एक प्रॉपर कलेक्शन आती है, उस कलेक्शन का एक नाम होता है, उस थीम का यू कैन टेल कि ये प्रॉपर कलेक्शन है। अगर मैं